मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़भावात्मकं, पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये। संश्लिष्टावयोर्भवौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं, रूपं तत्त्रतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। मंचस्थ विराजमान पूज्य पितृचरण, पूज्य श्री श्याम मनोहर जी, पूज्य दादा भाई श्री विजय कुमार जी एवं आचार्य परिवार, आनंदનો અવસર છે આજે કે સંસ્થાની વિનંતીને માન આપી ઉભય આચાર્યો પધાર્યા છે। પૂજ્ય દાદાભાઈએ ખૂબ સુંદર આજ્ઞા કરી છે કે ભગવત સેવા કે ભગવત નામ કેવલ અલૌકિક મનોરથ માટે જ થવા જોઈએ। કોઈ પણ લૌકિક ચાહ મનમાં રાખી ભગવત સેવા કે ભગવત નામ લીધેલું સ્વમાર્ગીય નથી, સકામ ભક્તિ થઈ જાય છે। જેવા શ્રી પ્રભુ આપણા નિર્ગુણ છે, નિર્વિકાર છે, એવી જ આપણી ભક્તિ હોવી જોઈએ, એવો જ આપણો સ્નેહ હોવો જોઈએ, એવી જ આપણી સેવા હોવી જોઈએ, તો જ શ્રી પ્રભુ સુધી પહોંચે છે। સુંદર લીલાનું વર્ણન છે, આજે ભ્રમર ગીતની લીલાનું વર્ણન છે। સંસ્કૃતમાં ભ્રમરને ષટપદ કીધો છે। શ્રી ગોપીજનોએ શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ અને ભ્રમરનું સ્વરૂપ એક કહી વિવિધ લીલાઓનું વર્ણન કર્યું। શ્રી ઉદ્ધવજી જે જ્ઞાન આપવા આવ્યા હતા, આજે સ્નેહનું પાન કરી રહ્યા છે। જ્યારથી કથાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારથી આપણે એક જ વાત કરી રહ્યા છીએ, દોના ભરભર કથામૃત કો પાન કરે। દોનાનું સંપ્રદાયમાં બહુ ઊંચું સ્થાન છે। એક વ્યક્તિ છે સર્વસમર્પણ કરે છે, એક વ્યક્તિ રંચક સેવા કરે છે। આચાર્યશ્રી એક જ આજ્ઞા કરે છે કે આખું દોના પ્રસાદ દો। દોના હે ઇતનો સોઈ, પણ દોનાનું મહાત્મ્ય તમે જુઓ, શબ્દ સાંભળો એના, દો ના। હવે આ જીવ અને શ્રી પ્રભુ બે અલગ અલગ નથી રહ્યા, હવે એક થઈ ગયા છે। આ આપણા ત્યાં દોનાનું મહાત્મ્ય છે। પૈસા આપી મીઠાઈ તો દુકાનમાં મળી જાય, 10,000 ભેટ ધરી તો આટલો મોટો ટોપલો, 50,000 ધરી તો આ ટ્રક ભરીને, પ્રસાદ તો દોના માત્ર હોય। આ પુષ્ટિ સંપ્રદાયની વિશેષતા છે અને આ દોનાનું મહાત્મ્ય છે। હવે જ્યારે આપણે અને આપણા પ્રભુ એક થઈ ગયા છીએ, એ ભક્તિરસ, એ કથામૃત दोना भर भर पीनो है।
પાછો વિષય પર આવું. ષટપદ ભ્રમર જોડે શ્રી પ્રભુની ઉપમા કરી છે. શ્રી પ્રભુને ષટપદ કીધા કે ધર્મના 6 અંગ છે અને પોતે ધર્મી સ્વરૂપ. એવી રીતે શ્રી ભ્રમરને, શ્રી ઠાકોરજીને ધર્મ સાથે ધર્મી એવો નિર્ગુણ ભક્તિ, નિર્ગુણ ભક્તિ, એવી નિર્ગુણ ભક્તિના નાયક બનાવ્યા અને પોતે એમના અંશી થઈને એમની એક એક લીલા, જેમનો અનુભવ એમને કર્યો છે, એનું ગાન કર્યું છે. એ ઉદ્ધવજીને જ્ઞાનનું અનુભવ, અભિમાન, જ્ઞાનના અભિમાન પછી શુદ્ધ સ્નેહની પ્રાપ્તિ, અને હવે એ તનુજા સેવા કરશે. પહેલા પણ 2-3 દિવસ પહેલાથી, પહેલે દિવસથી જ એક જ વાત કરી રહ્યો છું. પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ સેવા તો દેહથી જ કરવાની છે, એ પણ નિસ્વાર્થ. કેવલ પુષ્ટિ સંપ્રદાય વૈષ્ણવોને અલૌકિક મનોરથ જ મનમાં લાવવાનો અધિકાર છે. બીજી કોઈ ચાહના જો મનમાં આવે તો હજી દૃઢાશ્રય આપણને સિદ્ધ થયો નથી. એ શુદ્ધ સ્નેહનું સ્વરૂપ બધા ભગવદીઓએ ગાયું છે. એ જ નિર્વિકાર પ્રેમ શ્રી રૂક્ષ્મણીજીનો હતો. એમના એક જ સંદેશે, આપણે તો રોજ સંદેશો કરીએ છીએ, શરણમ મમ, શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. ઠાકોરજી સામે બેઠા હોય કેવું લાગે? આપણે ઠાકોરજીને કહીએ રોજે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. ઠાકોરજી કહે છે હું બેઠો છું, હવે મારી સેવા કરો. તો કે નહીં, અમે મોડેથી કહીશું શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. શ્રી ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ પછી મને એક વૈષ્ણવે પૂછ્યું, પુષ્ટિ સંપ્રદાયનું શું સ્થાન સનાતન ધર્મમાં? સોરી, મેં કીધું સૌથી ઊંડો હોય, ગામથી ઊંધો ચાલતો હોય પુષ્ટિ સંપ્રદાય. બહુ સાચી વાત છે. આટલી કથાઓ આપણે સાંભળી, આ ઋષિ મુનિએ આટલા 1000 વર્ષ તપસ્યા કરી, એમનો અડધો અંગ ઉદયમાં આવી ગયો, અડધો અંગ જમીનમાં દટાઈ ગયો, આટલા વર્ષ પાણી પીધું, આટલા વર્ષ પાંદડા ખાધા, અમને આટલા 1000 વર્ષ તપસ્યા કરી. શ્રી પ્રભુ પધાર્યા, એક વર માંગ્યું કે ભાઈ તમારે શું જોઈએ છે? તો કે મારે આ જોઈએ છે. તથાસ્તુ. શ્રી પ્રભુ પધાર્યા. ગોવર્ધનનાથ કી જય. ઇતિશ્રી કથા પૂરી. હવે આપણો પુષ્ટિ સંપ્રદાય તમે ઊંધો જુઓ, બ્રહ્મ સંબંધ થયું નથી ને શ્રી ઠાકોરજી પધારે. હવે તપસ્યા રૂપી સેવા કરવાની છે. ત્યાં ઠાકોરજીએ પૂછ્યું હતું કે તમારે શું જોઈએ છે, કયું વર માંગવું છે? આપણે રોજ સવારે શ્રી ઠાકોરજીને પૂછીએ છીએ આજે શું અરોગવું છે આપને, આજે હું કેવી રીતે લાડ લડાવું? છે કે નહીં ઊંધો? ફલ પ્રાપ્તિ પછી તપસ્યા એ તનથી મનથી સેવા. એની પ્રાપ્તિ થવી ત્યારે જ પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવતાની પ્રાપ્તિ થવી કહેવાય છે. જે ભગવત સેવા નથી કરતો, મારી દૃષ્ટિમાં તો પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવ જ નથી. એને કેવલ ભ્રમ છે. ભ્રમર ગીતની વાત આવી ને, એને કેવલ ભ્રમ છે કે હું વૈષ્ણવ છું. શ્રી ઠાકોરજી કૃપાળુ છે, એમનો છત્ર મોટો છે,
તે છત્રમાં ક્યાંક ખૂણામાં ઊભા છીએ. કૃપાળુ છે, આપણને આવી દિવ્ય કથાઓમાં સ્થાન આપે છે, દિવ્ય મનોરથોમાં સ્થાન આપે છે, દિવ્ય ઉત્સવોમાં સ્થાન આપે છે. પણ જ્યાં સુધી આપણું કાર્ય, સેવકપણાનું કાર્ય એ સ્વામી માટે જ્યાં સુધી નથી થતું, ત્યાં સુધી આપણું એ દાસત્વ અધૂરું છે, દાસત્વ છે જ નહીં. વિવિધ કથાઓનું ફલ ભગવત સેવા છે. સેવાનો મનોરથ જગાવી રાખવા માટે ભગવત કથા છે, સ્મરણ છે. આજના દિવસે દેહથી આનંદ લેવાનો છે. શ્રી ઠાકોરજી દ્વાર પર ઊભા છે. દિવ્ય મનોરથ છે શ્રી રૂક્ષ્મણી વિવાહનો. બધા મનોરથોનો આનંદ લઈએ. એ સાથે મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. श्री वल्लभाधीश की. वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार. श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार. श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद. प्यारे वल्लभ के चरणारविंद. प्यारे वल्लभ के चरणारविंद. मेरे वल्लभ के चरणारविंद. मेरे वल्लभ के चरणारविंद. माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद. प्यारे विठ्ठल के चरणारविंद. प्यारे विठ्ठल के चरणारविंद. मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद. विठ्ठल के चरणारविंद. विठ्ठल के चरणारविंद. सर्वसार को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद. सर्वसार को सार श्री विठ्ठल के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के
देखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे को बारंबार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद विठल के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद श्री विठल के चरणार विंद बहे प्रेम की धार श्री वल्लभ के चरणार विंद बहे प्रेम की धार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद 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 श्री विठल के चरणार विंद विठल के चरणार विंद श्री विठल के चरणार विंद विठल के चरणार विंद जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ 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 के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद विठल के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद विठल के चरणार विंद प्यारे विठल के चरणार विंद प्यारे विठल के चरणार विंद जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणार विंद जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद वल्लभ के चरणार विंद विठल के चरणार विंद विठल के चरणार विंद विठल के चरणार विठल के चरणार विंद विठल के चरणार सदा गोपिका मंडले राजमानम् लसंनृत्य बन्धादिलीला निदानम् गलद्दर्प कन्दर्प शोभाभिदानम् भजे नन्दसूनु सदानन्दरूपम् कृपां प्रकुरतां दीने स्वतः एव कृपाकरौ स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा। सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये।
संश्लिष्टाबुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्प्रीत्यात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। मायावाद करीन्द्र दर्पदलने नास्येन्दुराजोद्गत श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभ नामधेय सदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि। न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धि न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बोलिए भागवत भगवान की। प्राणप्रेष्ठ श्री नटवरलाल श्यामलाल प्रभु के पूर्ण अनुग्रह से प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री नटवर गोपाल लाल जी महाराज जी के अनुग्रह से पूज्य चरण श्री व्रतनाथ जी महाराज जी, पूज्य चरण श्री मधुसूदन बाबा जी, पूज्य चरण आवरण बाबा जी की सत प्रेरणा और प्रयास से विराजमान हमारे सभी विद्वज्जन भूदेव महानुभावों के सहयोग से श्री वल्लभ विठ्ठल संस्था के समस्त दृष्टि अधिकारी जन, सेवक जन सभी अपनी अपनी सेवा में सहयोग दे रहे हैं। हमारे कलाकार वृंद, पांडाल व्यवस्था, मंच व्यवस्था, माइक व्यवस्था, रिकॉर्डिंग व्यवस्था, आज सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सानंद निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। हमारे श्रीमद् भागवत यज्ञ के मुख्य मनोरथी श्रीमती विमला बहन, श्रीमान भगू भाई और विराजमान समस्त पोथी जियों के मुख्य यजमान, उनके पारिवारिक जन, आज सभी के हृदय में बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि किसी भी सत्कार्य की प्रेरणा भगवान की कृपा से होती है। पहले तो कामना जगती है कि हम जीवन में ऐसा अलौकिक लाभ प्राप्त करें। भगवत कृपा बिना इच्छा ही पैदा नहीं होती।
और उसके बाद ये निश्चय हो जाए कि सब काम पीछे, पहले ये लाभ लेना है। जब भगवान की पूर्ण कृपा होती है तब ऐसी दृढ़ता होती है, और जब भगवान की महती कृपा होती है तब ऐसे कार्यक्रम का संयोग बनता है और वो आयोजन निर्विघ्न सानंद संपन्न होता है। आज हम भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव कर रहे हैं। सभी ने पूर्ण सहयोग देते हुए दत्त चित्त होकर कथामृत का पान किया है। लेकिन प्रायः वैष्णवों से मिलना होता है तो एक ही शिकायत सुनने को मिल रही है, शास्त्री जी मन नहीं भरा, तृप्त नहीं हुए। मैंने कहा ये तो पुष्टि मार्ग का फल है, डकार आ जाना, तृप्त हो जाना ये फल नहीं है। पेट भर जाता है तो भोजन में रुचि नहीं रहती, भूखे बने रहना चाहिए, और भूख पुनः भोजन प्राप्त करने की इच्छा जगाती है। तो अगर आपके अंदर पुनः भूख है, प्यास है, तो श्री ठाकुर जी पुनः संयोग बनाएंगे। पूज्य चरण बाबा श्री आज्ञा किए हैं, जल्दी ही योग बनेगा और हम किसी एक विशेष विषय पर पुनः कथा श्रवण करेंगे, अपने कानों को पवित्र करेंगे। ये प्यास कभी शांत नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे वैष्णव यहां कथा सुनने के लिए पधारे हैं, मैं तो अहोभाग्य मानता हूं। जो बेचारे कहीं जाते ही नहीं है, उनको पोषण सब जगह प्राप्त होता ही नहीं है, गुरु घर जाना, अपने ठाकुर जी की सेवा पहुंचना, ऐसे लोग भी यहां कथा श्रवण के लिए आए। फालतू प्रदर्शन की भीड़ यहां इकट्ठी नहीं हुई है, यहां जो श्रोता आए हैं वो श्रवण करने के लिए आए। और आपका भाव देख के मैं तो गदगद हो जाता हूं, चाहे 12:30 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, आपको हिलते ही नहीं। यद्यपि 1 बजे विश्राम हो, फिर आप घर जाएं, प्रसाद लेके आवें, 3:30 पे आना ही संभव नहीं होता है, फिर भी आप पूर्ण प्रयास करते हैं। आप कैसे कैसे घर की व्यवस्था बना के आते होंगे ये तो आप जानते हैं। इस आयोजन में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। नित्य वल्लभकुल बालकों के दर्शन हो रहे हैं, आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है। और देखिए, वल्लभकुल आचार्यों से जिनसे निवेदन किया गया था प्राय सभी पधारे। श्री पूज्य चरण दुर्मिल कुमार जी बाबा श्री उस दिन बहुत व्यस्त थे, कोई खास मीटिंग थी, फिर भी आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा श्री को यहां पधराया। और जिस दिन पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित वल्लभकुल शिरोमणि श्री चिमनलाल जी महाराज जी पधार रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कृष्णदेव राजा की सभा में श्री वल्लभ पधार रहे हैं, मानो भागवत कथा का फल चला रहा है। बिना पूर्व निमंत्रण के स्वतः ही आपने श्रीमुख से आज्ञा की मुझे पधारना है। कैसा अद्भुत संयोग महाराज, कितने ठाकुर जी के स्वरूप पधारे हैं यहाँ। नित्य सेवा हो रही है, ठाकुर जी श्रवण कर रहे हैं। जहां ठाकुर जी चल के पधारे, वल्लभकुल आचार्य शरण चल के पधारे हैं, वैष्णव पधार रहे हैं, तीनों का ये अद्भुत जो मिलन हुआ है इन 8 दिवस में, इस अद्भुत प्रसंग को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। भगवान की महती कृपा वर्षी है हमारे ऊपर। पूज्यपाद श्री मधुसूदन बाबा तिलक बाबा श्री, आपका उत्साह तो देखते ही बनता है। सदा प्रसन्न मुखारविंद, सदा प्रसन्न चित्त, और प्रेरित करना, संस्था के सदस्यों को उत्साहित करना,
सदा। और एक ही लक्ष्य है, एन केन प्रकारेण वल्लभी सृष्टि का, वैष्णवों का पोषण होना चाहिए। अहमदाबाद में असारवा बैठक में प्रातस्मरणीय पूज्य चरण श्री नटवर गोपाल लाल जी महाराज जी के दर्शन हुए थे और आपके श्रीमुख से यह आज्ञा हुई थी। तो एक बार श्री गोसाई जी को भागवत सुना, मेरे नटवर लाल सुनेंगे, संयोग नहीं बन पाया। आपने हस्तलिखित पत्र भी भेजा था ग्वालियर। श्रीमुख से आज्ञा हुई है, पूरी तो होगी, कब होगी ये तो प्रभु जाने। तो आज जो ये कथा का विराम हो रहा है, मुझे तो लगता है महर्षि के आशीर्वाद से, आप श्री की जो आज्ञा हुई थी आज वही आज्ञा पूर्ण हो रही है। श्री नटवर गोपाल लाल जी महर्षि की आज्ञा से ठाकुर जी श्रवण कर रहे हैं और श्री प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी श्रवण कर रहे हैं। और वो वचन श्रीमुख से प्रकट हुए थे, आज वो इस सेवक को पूर्ण करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को कृतकृत्य मानता हूं, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। परम भगवती हमारे श्री महेंद्र भाई, जिनका स्मरण हो ही आता है, बड़े उत्साह से सारे कार्यक्रम की रूपरेखा जमा रहे थे और जमा गए थे। आज वो हमारे बीच में यही विराजमान हैं, भगवत चरणारविंद में विराज रहे हैं और संपूर्ण कथा का आस्वादन उन्होंने किया है। प्रभु की लीला बड़ी विलक्षण होती है। देखिए, भगवान के लीला में पधार के संपूर्ण कथा श्रवण भी किया उन्होंने और कोई विक्षेप नहीं आने दिया। अपने पारिवारिक जनों को भी सूतक आदि से निवृत्त करके संपूर्ण कथा सुनने का अवसर प्रदान किया है। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, भगवत इच्छा के आगे किसी की चलती है? अगर कथाक्रम में कुछ ऐसी घटना घट जावे तो मन में कितना दुख हो, लेकिन भगवान सर्व प्रतिबंधों का, अंतरायों का निवारण कर देते हैं। जब उनको पूरा आनंद प्रदान करना होता है, सारी बाधाएं, सारे प्रतिबंध दूर हो जाते हैं। तो आज हम भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं और भगवान से यही विनती करते हैं कि भविष्य में ऐसा संयोग पुनः पुनः बने और हम अपने कानों को पवित्र करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया। दसम स्कंध की कथा में राजस भक्तों का प्रमाण प्रमेय साधन प्रकरण कल आप सुन रहे थे। जैसे ब्रज भक्तों को भगवान ने निरोध सिद्ध किया, प्रपंच का विस्मरण कराया, ऐसे ही राजस भक्तों के लिए भगवान ने यह कृपा की। प्रमाण प्रकरण में भक्तों को महात्म ज्ञान कराया, प्रमेय प्रकरण में कृपा करके भक्तों को आसक्ति का दान किया है। उद्धव जी को ब्रज में भेजा, कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए, ये प्रमेय प्रकरण है। और साधन प्रकरण में, जैसे ब्रज लीला में तामस प्रकरण में आपने देखा है कि भक्तों के साधन भगवान बन गए, ऐसे राजस प्रकरण में भी इन भक्तों के साधन भगवान बन गए। मुचकुंद जो सो रहे थे, उनको दर्शन देने का कैसा बढ़िया बहाना खोजा भगवान ने। कालेवन पीछे दौड़ रहा है और भगवान गुफा में पधारे, दर्शन दिया उनको। रुक्मिणी जी को स्वयं पधार के अंगीकार किया है। कल आपने विवाह लीला का दर्शन किया। कल तो ऐसा लग रहा था हम अहमदाबाद में नहीं, माधोपुर में बैठे हैं, ठाकुर जी के विवाह लीला का दर्शन कर रहे हैं।
हमारे इला बहन ने बहुत बढ़िया बढ़िया विवाह के धोल गाए और बहनों ने भी बहुत बढ़िया सहयोग दिया। और आपने जो उद्घोष की सेवा की है बड़ी व्यवस्थित, क्योंकि मंच संचालन करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप दोनों ही दंपति, आपके पतिदेव आदरणीय ऋखव भाई सही समय पे आते हैं मुझे लेने के लिए। सभी का सहयोग है। बहुत बहुत सब धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा स्नेह तो मेरा आप लोगों के लिए प्रकट हो रहा है। अगर ये सब श्रोता नहीं होते तो आनंद कैसे आता है? आपने इस यज्ञ में मालूम है कौन सी सेवा की है? जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया था ना, तो गिरिराज जी का बोझ तो भगवान के हस्त में था, लेकिन सब ब्रजवासियों ने यूं हथेली लगाई थी। हथेली लगाई ना। तो हम जो भी सेवा दे रहे हैं, जो भी सहयोग दे रहे हैं, ये हथेली लगाने का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में तो सारा बोझ भगवान के ऊपर ही है। ये सब कार्य कृष्ण की प्रेरणा से हुआ है, कृष्ण की इच्छा से हुआ है, कृष्ण की कृपा से हुआ है। सारा भार तो भगवान के ऊपर है, हम लोग निमित्त हैं। अगर वो कृपा न करें कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अब आप राजस फल प्रकरण की कथा सुनेंगे। राजस भक्तों को फल फलित हुआ। भगवान के अन्य विवाहों की कथा, यदुकुल का विस्तार, और फल क्या है कि सब पटरानियां अपने अपने महलों में भगवान की सेवा कर रही हैं। कोई दासी नहीं थी महलों में, और इस सेवा से ही उनको भगवान में निरोध सिद्ध हो गया। यही पुष्टि का फल है महाराज। आज भगवान की गृहस्थ लीला के दर्शन कीजिए। बोलिए द्वारिकाधीश की। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। 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 कृष्ण माधवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः, कृष्ण यादवाय 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 नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। हरि हरये नमः, कृष्ण माधवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः। कृष्ण माधवाय नमः। द्वारिकाधीश की। आपने चतुर्व्यूह का परिचय सुना था। द्वारिका लीला में ये व्यूह स्वरूप प्रकट हुए हैं। ब्रज लीला में भगवान में विराजते हैं। रुक्मिणी नंदन के रूप में भगवान प्रद्युम्न का प्रागट्य हुआ, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। ये भगवान के ही स्वरूप हैं, लेकिन लीला में पिता पुत्र हैं। जैसे वल्लभ भी साक्षात कृष्ण, विठ्ठल भी साक्षात कृष्ण, पर लीला में पिता पुत्र हैं।
ये लीला है भगवान। पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठल नाथ। जैसे लीला में स्वामी जी से चंद्रावली प्रकट हुई है और यहां श्री वल्लभ से श्री विठल प्रकट हुए। सम्रासुर का उद्धार किया, मायावती रति से विवाह हुआ। दो विवाहों की कथा सुनाई। द्वारिका में सत्राजित को सूर्यदेव ने समयंतक मणि दी। अद्भुत प्रभाव था इसका। दुर्भिक्ष नहीं होता, सर्पदंश से मृत्यु नहीं होती, 8 बार स्वर्ण उगलती थी। इस कथा में यह बतलाया है कि लोभ का परिणाम क्या होता है। बिना परिश्रम के अचानक किसी को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और उसमें थोड़ा अंश भी दान न करे, परोपकार में न लगावे, तो वो द्रव्य आसुरी द्रव्य बन जाता है और वो द्रव्य उसी का नाश कर देता है। इसी मणि के कारण छोटे भाई प्रसेन की मृत्यु हुई। गले में पहन के चला गया था वन में। ऋष जामवंत मणि निकाल के ले गए। भगवान ने सत्राजित से कहा था ये मणि उग्रसेन को दे दो, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन लोभ के कारण नहीं। और भगवान को कलंक लगा दिया है कि मेरे भाई को वन में अकेला देख के मार दिया और मेरी मणि ले ली। भगवान द्वारिकावासियों को साथ लेके मणि खोजने गए। जामवंत की गुफा में पधारे। जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने पराजित कर दिया है। तब जामवंत को स्वरूप ज्ञान हुआ। ये तो साक्षात भगवान पधारे आए थे मणि खोजने के लिए, और जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती भगवान को अर्पित कर दी। मणि सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित बहुत लज्जित हुए। अगर मैं मणि कृष्ण को दूंगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी कन्या सत्यभामा सौंप दूं और दहेज के रूप में मणि दे दूंगा। सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ हुआ। और जब मणि देने लगे तो भगवान ने कहा हमें मणि नहीं चाहिए, हमें तो पहले भी इच्छा नहीं थी। हाँ, मणि से निकलने वाला स्वर्ण महाराज उग्रसेन के खजाने में भेज दिया करो। भगवान ने फिर इसकी बात कही। बोलो श्री वल्लभाधीश। देखिए, काम आवेश भी कुछ समय के लिए होता है, क्रोध का आवेश भी थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन लोभ का आवेश बना रहता है। ये बहुत प्रबल दोष है। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा समर्पित की और सबके सामने वचन दिया कि ये मणि मैं आपको दे रहा हूं। भगवान उनके मन की जान गए कि मन से नहीं कह रहे हैं। भगवान ने आज्ञा की ये मणि आप अपने पास रखिए और इससे निकलने वाला जो स्वर्ण है वो उग्रसेन महाराज के खजाने में भेज दिया करो। मणि लेके घर में आ गए। पूजा कक्ष में मणि स्थापित कर दी। अब उसको देख रहे हैं कितना सोना है घर में। सोने का महल, सोने की सैया, सोने के सिंहासन। मणि को देखते हुए सत्राजित विचार करने लगे कि श्री कृष्ण ने तो मेरे साथ बड़ी चतुराई की। सबके सामने कह दिया मणि आप रखिए और मणि से निकलने वाला धन उग्रसेन जी को दे दीजिए। तो फिर मणि रखने का लाभ क्या है? ये तो वही बात हो गई। किसी यजमान ने पंडित जी से कहा है मैं आपको गौदान करना चाहता हूं। पंडित जी बोले हमें आपकी गाय नहीं चाहिए, किसी गौशाला में दीजिए या किसी अन्य ब्राह्मण को दे दीजिए, हमारे घर में जगह नहीं है, सेवा बनेगी नहीं, मैं आपको ही दान करूंगा। बहुत हट किया।
मैं आपको ही देना चाहता हूं। तो पंडित जी ने कहा कुछ हमारी शर्तें हैं, आप स्वीकार करें तो हम गोदान ले लेंगे। बोले क्या शर्त है? मुझे सब मंजूर है। सुनिए, ये शर्त है कि गोदान के बाद गाय आपके घर में रहेगी, स्वीकार है। गोबर गोमूत्र सब आप समेटना, स्वीकार है। दोनों समय चारे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, स्वीकार है। पंडित जी बोले एक शर्त और है। बोले क्या? दोनों समय का दूध मेरे घर पहुंचा दिया करो, स्वीकार है। यजमान बोला माथा खराब हुआ है क्या मेरा? गाय रखूं मैं, सेवा करूं मैं और दूध पहुंचा दूं तेरे घर, तो गाय रखी गाय के लिए। सत्राजित ने कहा है मणि रहेगी मेरे पास और धन भेज दूं वहां, तो मणि का क्या लाभ? ये मणि मेरी है, ये सत्ता मेरी है, इसने ही तो नाश कर दिया महाराज। आचार्य आज्ञा करते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा ममत्व यदि आसक्ति किसी चीज में है तो दो चीज में है महाराज, एक शरीर में, दूसरा धन में। शरीर और धन ये दो प्रिय हैं। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। धन से ज्यादा प्रिय शरीर है। कोई कृपण है, एक पैसा नहीं खर्च कर सकता है और डॉक्टर कह दे कि अमुक रोग है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो बस ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तो खर्च करेगा। ये दो की जो आसक्ति है ना, बड़ी कठिन है। तो महाप्रभु जी हमें उपाय बताते हैं कि इन दोनों को अपना क्यों मान रहे हो? इन दोनों का सदुपयोग यह है कि इनको भगवत सेवा में लगा दो। तत्सिद्ध ही तनु वित्त जा, ये तनु वित्त दो ही नाम क्यों दिए हैं महाप्रभु जी ने? क्योंकि इसमें ही ज्यादा आसक्ति है। अंगीकार करा दीजिए। लोभ के कारण ही हमारा अहम समर्पण नहीं हो पा रहा है। अपना अहम भगवान को दे दूंगा तो बचेगा क्या? लोभ के कारण ममत्व समर्पित नहीं हो पा रहा है, मेरा है। और जिस दिन लोभ छोड़ दिया, लोभ का उल्टा करो तो क्या बन जाएगा? भलो 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 सब कहिए, सब भला चाहते हैं। और इसी मणि के कारण सतधनवा ने सोते हुए सत्राजित को मार दिया, मणि लेके भाग गया। भगवान ने मिथिला में जाके उसका उद्धार किया। मणि तो अक्रूर जी के पास थी, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उस मणि से मिलने वाला धन का सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं लोभ पाप को मूल है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ मिटावत मान, लोभ कबहू नहीं कीजिए, लोभ कबहू न कीजिए, याते नरक निदान शिवल्लभ, याते नरक निदान, शिवल्लभ याते नरक निदान, शिवल्लभ याते नरक। ये तीन विवाह की कथा जो आपने सुनी है, ये तीन भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्तियां हैं। सृष्टि सृजन शक्ति, पालन पोषण शक्ति, संहार शक्ति, ही तीन ही काल हैं, तीन ही गुण हैं। इसके अलावा 5 विवाहों की कथा कही। कालिंदी जी के साथ, मित्रविंदा जी के साथ, स्वयंवर में 7 बैलों को एक ही बार में नाथ दिया। नागनजिति, कौशल नरेश महाराज की कन्या सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां हैं। ये 5 विवाहों की जो कथा है, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ये 5 पटरानियां ब्रह्म की 5 विद्या हैं।
जीव के अंदर 5 विद्या दोष हैं और ब्रह्म के अंदर 5 विद्या गुण हैं। जब जीव का ब्रह्म से संबंध हो जाता है, भगवान 5 विद्याओं का नाश कर देते हैं शनैः शनैः, और 5 विद्याओं का दान कर देते हैं। 5 विद्या कौन सी हैं? आत्मज्ञान स्वरूपा कालिंदी जी हैं, तप रूपा मित्रविंदा जी हैं, योग स्वरूपा नागनी जी हैं, विवेक स्वरूपा भद्रा जी हैं, और भक्ति स्वरूपा लक्ष्मणा जी हैं। ये मुख्य 8 पटरानी है। बोलिए द्वारिकाधीश की। और इसके बाद कथा है, भौमासुर के द्वारा बंदी बनाई हुई 16,000 कन्याएं। द्वारिकाधीश ने भौमासुर का उद्धार करके उनको बंदी गृह से मुक्त किया। इंद्र का छत्र अदिति के कुंडल छीन के ले गया। इंद्र ने आके भगवान से प्रार्थना की, आज भगवान को मौका मिल गया, जहां आसाम है वहां रहता था भौमासुर, ऐसा सुदृढ़ दुर्ग बनवाया जिसको जीतना असंभव था, और उसके राज्य का रक्षक था मुर दैत्य। भगवान ने सबसे पहले मुर का उद्धार किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुर के अरी हैं, जो मुर के शत्रु है। भौमासुर का उद्धार किया, पुत्र को अभयदान दिया, पृथ्वी देवी प्रकट हुई, स्तुति की। ये सब लीला तो होनी थी। सब कन्याओं ने जब भगवान का दर्शन किया, मोहित हो गई दर्शन करके। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, भौमासुर तुम्हारा हरण करके लाया है। श्री महाप्रभु जी यहां सिद्धांत बतलाते हैं कि मन की वृत्तियां 16 हैं, क्योंकि मन का देव चंद्र है, चंद्र की 16 आय होती है, एक एक से 1,000 वृत्ति, ऐसे 16,000 वृत्तियां, और इनका संबंध जब श्री कृष्ण से हो जाता है तो हमारी चित्तवृत्ति का भगवत चरणारविंद में निरोध हो जाता है। सिद्धांत क्या है यहां? 16,000 कन्याओं ने प्रार्थना की, ये भौमासुर हमें चुरा के लाया है। अलग अलग घरों में हम जन्मी थी, ये चुरा के अंतर ध्यान हो जाता था, किसी को नहीं मालूम कौन ले गया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा सकता हूं। तो कन्याओं ने क्या उत्तर दिया है? अब ये घर वाले, समाज वाले, परिवार वाले हमें अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाज की दृष्टि में हम खोटी हो चुकी हैं। अरे समाज है, सती शिरोमणि सीता जी को नहीं छोड़ा, और की बात क्या है? भगवान ने कहा, फिर क्या चाहती हो? अपमानित होकर जीवन जीने से क्या लाभ? इससे तो जीवन समाप्त कर दिया जाए। भगवान ने कहा, नहीं, भक्ति मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है। जो जीवन से हार जाते हैं, जीवन से ऊब जाते हैं, अरे भक्त वो है जो ये कभी ना कहे, हे ठाकुर जी अब तो उठा लो, बस बहुत हो गया ना। अरे उठ जाओगे तो क्या करोगे? यहां भी रो रहे हो, वहां भी रोगे। जिसका स्वभाव ही रोने का हो, प्रभु अब नहीं सहन हो रहा है, उठा लो। भगवान बोले, वहां रोएगा आके तू। और जो भजन निष्ठ है, उसको तो यहां भी सेवा करनी और वहां भी सेवा करनी, उसके लिए जीवन भार नहीं है। महाप्रभु जी पलायन की आज्ञा नहीं देते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं, इसी गृहस्थ में रहो। जिसको ज्ञानी बाधक समझ रहे हैं, वही तुम्हारी सेवा भजन में साधक हो जाएगा। कोई चीज बाधक नहीं है, केवल मन की विचारधारा बाधक होती है। तो हम क्या करें, कहां जाएं? भगवान ने कहा, सबकी सब द्वारिका चलो। कलकत्ते में मेरी कथा थी, तो एक युवा आधुनिक बुद्धिजीवी आए और क्या बोले, शास्त्री जी, और कथा बड़ी विस्तार से होती थी, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम, और 9 दिन की कथा। अब बताओ कितना विस्तार होगा। तो क्या बोले, शास्त्री जी रोज कथा सुनता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है, लेकिन आज तो मेरा माथा खराब कर दिया आपने। मैंने कहा, भैया ऐसा क्या अपराध हो गया? बोले, आपने इतने विवाहों की कथा सुना दी, मेरा तो दिमाग चकरा गया। इतने विवाह किए भगवान ने।
मैंने कहा इसमें परेशानी क्या हो गई? बस मेरा दिमाग खराब कर दिया आपने। इतने विवाह होते हैं किसी के? मैंने कहा भैया ये तो बहुत कम संख्या है। सुखदेव जी तो और विवाह की लीला सुनाना चाहते थे। तो उसने कहा आप मेरा समाधान कर रहे हैं कि बिल्कुल ही मेरा दिवाला निकालने वाले हैं दिमाग का? ऐसे ऐसे कुतर की आते। मैंने कहा भैया बुरा मत मानना, 84 लाख तो योनियां हैं, फिर जीव कितने हैं? असंख्य। और जीव मात्र के पति कौन है? भगवान। जो बिछुड़े हैं भगवान से। अरे ये अवतार इसलिए हुआ है कि तुम इतनी योनि भोग के आए हो, बिछुड़ गए हो, मुझे अंगीकार हो जाओ, मुझे अपना स्वामी पति बना लो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं प्रकट हुआ। मैंने कहा सारे वैदिक वांग्मय का बीज गायत्री मंत्र है, और वो बीज गायत्री हमें संकेत दे रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। अंश है आत्मा, अंशी है परमात्मा। वो परमात्मा, वो ब्रह्म ही सबका अंशी है, वही वर्ण करने योग्य वर है, वही श्रेष्ठ है। विवाह होता है लौकिक में, अग्नि की साक्षी में वर वधू प्रतिज्ञा करते हैं।